जो हमारी थिंकिंग थी वो एक तरह से उसको एक नया दायरा मिला सोचने का। जो हम पहले सोचते थे एक लिमिटेड बाउंड्रीज में सोचते थे, वो अब हम लिमिटेड नहीं सोचते। हमें मतलब कुछ अलग सोचने के लिए एक अलग राह मिली है। ECO, in collaboration with GIZ, conducted filmmaking workshops in 4 schools, Shimla, Raipur and in Delhi, as a part of National School Sanitation Initiative. Since 2009, GIZ is supporting the National Urban Sanitation Policy and the National School Sanitation Initiative of Government of India. Schools form the microcosmos of every society. We wanted to learn how we can help schools to improve their sanitation situation on the ground. We did that by working with them, trying to make them develop their own school sanitation action plans. And what we learned convinced us that change is possible if you focus on the mindset of people. मतलब हम लोग जो साधारण सोचते हैं ना, उससे थोड़ा अलग सोचना है। तो अब से लेकर 24 तारीख तक सिर्फ उटपटांग चीज़ें सोचेंगे सब लोग। हम सब मिलके सोचेंगे। जैसे स्वाति ने बोला ना कि हम सीखना है, सिखाने आए और सीखने आए। We as adults often tell children what to think and how to think. At ECO, we ask children what are they thinking. We use video to enable children to author, to own their communication and to make new connections between themselves and the world around them. The workshops were for 10 days with 10 to 12 children at each site. Through icebreakers, group exercises, mind jog and discussions, we attempted to enlarge their perspective and shift the focus from themselves to the world around them. जब आप गाय के दूध निकालोगे, बाल्टी में गिलास में पियोगे, आप क्या वेस्ट करोगे, क्या गंदगी फैलाओगे। जब आप कार्टन में दूध पियोगे तो कार्टन को तो कुछ करना पड़ेगा ना, कार्टन को नहीं खा जाओगे आप, कार्टन को फेंकना पड़ेगा। तो एक फैमिली में 2 कार्टन होते हैं, एक बिल्डिंग में 100 कार्टन होते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब इकोनॉमी है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। इमेजिनेशन क्या होता है? Working with imagination and creativity, 2 building blocks of our process, we enable children to think out of the box. Creativity. Imagination and creativity से कुछ भी बना सकते हैं। Somebody has to come. You have to come. You have to come and do something. Hey, wow, क्या बात है। Very nice. Very good. We start with ideation, encouraging children to tell us their life stories and experiences, slowly opening up the concept of sanitation. फिर वो प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी अगर कहानियाँ मिलती हैं, तो वो थोड़ा अपने में डिस्कस करो, चर्चा करो। Cleansing the soul, sanitation. That's what you're saying. Yeah. Okay, that's also interesting. Purity of thought. बहुत अच्छे। देखो, look at all the words you guys have thrown out. Positive thinking, soul cleanliness, lethargy, responsible, awareness, fun, punishment. So we are covering a whole lot of things by just this one word of sanitation. मैं जाती हूँ, पर बहुत मजबूरी हो जाती है तो जाना ही पड़ता है। मैं तो जाती ही नहीं हूँ भैया। मैं भी 6 साल से पढ़ रही हूँ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 6 साल से पढ़ो और बाथरूम का नक्शा नहीं देखी। सही में? तुम 6 साल से बाथरूम में गई हो? मतलब क्या? नहीं तो जिंदा का बच्चे। लेकिन अल्टीमेटली तो विजुअलाइज करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। Before shooting, you have to visualize what is the shot I'm going to take. मतलब ये कमरा है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग Teaching the basics of filmmaking, showing several short films, learning storytelling through frames, the use of camera, and demystifying technology.
Children make their own shooting plans, choose locations, characters, choose their own music and the way they want to edit their films, and finally make films which they own and author. पूरा लेटे हो जाएंगे, वाले वो चल रही है और उसको पूरा से क्लोजअप ही रहेगा। Out of the 4 films, one was fiction and others were profiling their lives and their cleaning aunties, and one was even an ambitious animation film. Tuxedo dress with black goggles. All of them are coming in helicopters from distant places. Flies are dancing on Sheila ki Jawani. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ से कभी ना आनी, माने ना माने कोई। Have you ever seen a party so crazy? Humans were slaves and the guests were in frenzy, walking backwards to please their master, while roaches and rats die of laughter. Sheila ki Jawani, I'm too sexy for you. I'm impressed by the creativity of our young filmmakers to express their views on sanitation so nicely. It clearly reflects their critical minds and sets a very important message to everybody involved in the subject to join hands and see to it that the very necessary and feasible change on the ground is really happening. पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने जो दिल में आया मैंने बोला, कभी क्लास में चुप रहती थी मैं। रिस्पेक्ट जो थी, रिस्पेक्ट और इक्वलिटी हम पहले भी जानते थे, पर अब ऐसे कि हम रिस्पेक्ट और इक्वलिटी से एक तरह से इंस्पायर्ड हैं। बस आज से पहले हमारा जो था वो बिल्कुल सोच डिफरेंट थी। हम लोगों की जो सोच थी वो किसी एक बाउंड्री तक जा सकती थी, लेकिन अब जो हमारी सोच है वो काफ़ी दूर तक जाती है। If we have ears to listen to the voice of children, we may learn how to make this world a better place. बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे स्कूल की आंटियाँ हमारे स्कूल को साफ़ रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अगर ये लोग न होते तो शायद हमारा स्कूल इतना साफ़ नहीं होता। आंटी आपको याद है हम बचपन में आपके साथ ही खेलते थे, आप कितना ध्यान रखते थे हमारा, सब याद है। बचपन से हमने इनके साथ काफ़ी समय बिताया है, इसलिए इनके साथ हमारी कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। आंटी भी खा लो। हम स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फिल्म बनाई है ताकि आप सब ये जान सकें कि ये सब आंटियाँ हमारे और हमारे स्कूल को साफ़ रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। ये आंटियाँ हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं हैं। ये हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल का नाम दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल है और हमारा स्कूल गणेश नगर ईस्ट दिल्ली में है। हमारे स्कूल में 50 टीचर्स,
580 बच्चे और 10 वर्कर्स हैं। इनमें से 5 आंटियों का हमारे स्कूल में बहुत महत्व है, क्योंकि वह हमारे स्कूल को साफ रखने की बहुत कोशिश करती है। सीता आंटी बहुत ही फ्रैंक है, वह अपने काम को बहुत प्राउडली बताती है। उमा आंटी बहुत ही खुले दिल वाली है और खुश मिजाज भी है। शांति आंटी थोड़ी गुस्से वाली है, पर वह बच्चों को बहुत प्यार करती है। और पूनम आंटी बहुत ही शांत रहती है, अपना काम चुपचाप करती है। अगर ये आंटियाँ नहीं होती तो आज हमारा स्कूल यहाँ नहीं होता। ये आंटियाँ सुबह सबसे पहले 6:30 बजे आ जाती हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। सबसे पहले वो क्लासेस की चेयर्स सही ढंग से लगाती हैं और टेबल्स पर लगी धूल को साफ़ करती है। ये पेड़ पौधों को भी पानी देती है। फिर गंदी जगह पर झाड़ू पोछा भी लगाती है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टीचर्स के आ जाने पर उनके लिए चाय बनाती हैं। जब हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है तो आंटियाँ भी ज़्यादा मेहनत करती हैं। ये आंटियाँ स्कूल के टॉयलेट्स को भी दिन में 2 बार साफ़ करती हैं। ये इस स्कूल को अपनी घर की तरह साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हैं। ओए कितना काम है, मैं कितना काम करती हूँ। हाँ जी आंटी पता है। सभी बच्चों की स्कूल लाइफ में उनकी कोई ना कोई मनपसंद आंटी होती है। मेरी भी है, मेरी शांति आंटी। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में मैं किसी को भी मार देती थी। मैम से मुझे इस बात के लिए डांट ना पड़े, इसलिए शांति आंटी हमेशा मुझे बचाया करती थी। जब कभी भी मुझे भूख लगती तो मैं बैग से टिफ़िन निकालती और शांति आंटी के पास चली जाती। तब वह मुझे प्यार से खाना खिलाती। स्कूल में आकर मैं कभी भी नहीं रोई। मुझे कभी भी अपनी मम्मी की याद भी नहीं आई, क्योंकि शांति आंटी हमेशा मेरे पास थी। अब शायद हम बड़े हो गए हैं, कुछ बच्चों को याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे लिए शांति आंटी की अहमियत कभी कम नहीं होगी। बचपन से आंटियों ने हमारे लिए बहुत काम करे हैं, हमारे हर काम में हमारा साथ दिया। अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी कुछ जिम्मेदारियां खुद ले सकते हैं। हमारे सीनियर स्कूल में 272 स्टूडेंट्स हैं और कुल मिलाकर 214 वर्किंग डेज होते हैं। स्कूल को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम 272 स्टूडेंट्स मिलकर स्कूल में ही अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जैसे पौधों को पानी देना, सुबह आकर अपने क्लासरूम और टेबल्स को साफ करना, छोटे बच्चों के झूलों को साफ करना जैसे काम करें, तो न केवल हम स्कूल को साफ रखकर हम खुद हेल्दी और बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि स्कूल में काम कर रही आंटियों की मदद करके उनके काम का सम्मान करेंगे। आंटी चिंता मत करो, आपको स्पेशली क्लास को बुला के दिखाएंगे। हाँ आएगा ना, थिएटर में आएगा। झाड़ू भी आएगा पूरी इंडिया में। हाँ पूरी इंडिया में। झाड़ू नहीं आएगी, पोछे में मत आना। नहीं आएगी तो क्या होगा, काम करते समय शर्म किस बात की। आप हमारी फिल्म के
सुपर हीरो। मजा आशीर्वाद दे रही हूँ बच्चों को। हाँ ठीक है, हमें चाहिए। ये हमारी ईदगाह मस्जिद है। यहाँ हर जुम्मे और ईद पर नमाज़ पढ़ाई जाती है। ये हमारे सीलमपुर की शान है। यहाँ की ज़्यादातर सड़कें पतली पतली हैं, पर उस पे लोग और वाहन बहुत सारे हैं। यहाँ पर बहुत लोग छोटे छोटे गांव और शहरों से पैसे कमाने आते हैं और छोटे काम या बिजनेस करते हैं, जैसे कि हलीम बिरयानी के ठेले लगाना, रिक्शा चलाना, फ्रूट बेचना। बहुत लोग जैकेट और जीन्स का काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगी है। नालियाँ खुली हैं, गटर टूटे हैं और जगह जगह कचरे का ढेर लगा है। ये गली देखो, ये यहाँ की चेयरमैन है, कूड़ा नहीं उठवाती। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। हम सब मिलकर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। हमारी फिल्म सफाई पर है। हम इस फिल्म में हमारे मोहल्ले की सही तस्वीरें दिखाएंगे और ये पैगाम देंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सैनिटेशन कैसे रखा जाता है। मेरा नाम शाहीन है। मेरे 2 भाई और 2 बहनें हैं। ये मेरी अम्मी है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। मेरी अम्मी होने के साथ साथ वह मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। मेरी अम्मी सुबह 5 बजे उठ के नमाज और कुरान शरीफ पढ़ के घर के काम में लग जाती हैं। वो हमारे घर को बहुत साफ़ सुथरा रखती हैं। मैं और मेरी बहन भी अम्मी की मदद करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट दे दो हाथ को। मुझे पता है कि घर अंदर से साफ़ रहे, इसके लिए बाहर की सफाई भी ज़रूरी है। पर हमारे एरिया सीलमपुर में बहुत गंदगी है। नालियों में कूड़ा भरा रहता है और आस पड़ोस के लोग अपने घर और दुकानों का कूड़ा जमा करके नालियों में डाल देते हैं। कई लोगों की तो ये पुरानी ही आदत है और कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में सफाई वाले को नहीं बुलाते। या तो हम गंदगी फैलाना बंद कर दें, या काश मेरी अम्मी की तरह कोई जादुई अम्मी होती जो पूरे मोहल्ले के साथ साथ पूरे इंडिया की सफाई भी कर सकती। मेरा नाम साहिबा है। मैं जनता कॉलोनी में रहती हूँ। हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, पर हमारी तरफ बहुत गंदगी रहती है। हमारे पड़ोस में मुन्ना अंकल रहते हैं जिनका पाइप लीक हो रहा है। जो शौचालय का है उसके छींटे हमारे दरवाजे पर आते हैं। पाइप लगा हुआ है लैट्रिन का, और जब लैट्रिन ऊपर से आती है तो छींटे आती है नाली में। हाँ ये बराबर में फैमिली भी है उनकी भी, लेकिन वही पत्थर लगा देती है बस नाली पे। हम आते जाते हैं तो हमें भी लगती है। जहाँ से लोग घर में अंदर आते हैं वहीं अगर गंदा हो जाए तो बड़ा बेकार लगता है। हम और हमारी अम्मी सारा दिन उसे साफ़ करती रहती हैं।
मेरा नाम नौशीन है, मैं जाफराबाद में रहती हूँ। इस बार हमारे घर में पानी की बहुत परेशानी हुई। हम पीने का पानी बोतलों में भरकर नानी के यहाँ से लाए। बाकी काम के लिए हमने सामने वाली आंटी से बोरिंग का पानी लिया। चौथे दिन तक सरकार से शिकायत की। अगले दिन हमारे मोहल्ले में पानी का एक टैंकर आया। टैंकर की भीड़ देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। बहुत सारी औरतें तो लड़ने लगी और गाली गलौज करने लगी। मेरा नंबर तो बहुत देर बाद आया। ये हाल पिछले 15 दिन से चल रहा है, ना जाने और कितने दिन चलेगा। इस माहौल में भी हमारी अम्मी माशाल्लाह घर को चमका कर रखती हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी। मेरा नाम रमशा है और ये है मेरी कैटी। कैटी 3 साल पहले हमारे घर आई और हम बहुत खुश हुए। अब चूहे की क्या मजाल जो वो हमारे घर आए। कैटी तो छिपकली, कॉकरोच सब खा जाती है और उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ती। वो हमें इतना हंसाती है, इतना हंसाती है। वो हमारे हर बात समझती है और वो हमारे घर की रौनक है। मेरा नाम गुलफशा है, मैं वेलकम में रहती हूँ। मेरी दादी 35 साल पहले यहाँ आई। उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके 4 बच्चे थे और वो अकेली कमाने वाली थी। हमारा एक छोटा सा घर था और रहने वाले ज़्यादा थे। उस घर में एक छोटा सा भैंसों का तबेला था। वहाँ मेरी दादी अकेले काम किया करती थी। तबेले को भी वो साफ सुथरा रखती थी। मेरी दादी बहुत हिम्मत वाली हैं। अब हमारे वो दिन बदल गए जब हमारे पापा चाचा बड़े हुए तो अपने कारोबार में सेट हो गए। जब हमारी अम्मी आ गई तो वो घर का काम संभालने लगी। धीरे धीरे चाचियाँ भी आ गई। मेरी दादी घर में सबको काम करना सिखाती हैं। जब हम आलस करते हैं तो वो कहती हैं, बस तुम इतने में ही थक गए, हमने तो पूरा घर संभाला है। दादी कहती हैं, सफाई हमारा आधा ईमान है। हम उनकी बातों पर अमल करते हैं। इस फिल्म में हमने अपने मोहल्ले की सच्ची तस्वीरें दिखाई हैं। जब हम बड़े हो तो हम ये दुआ करते हैं कि ये मोहल्ला बदल जाए। घर में सारे लोग घर के सभी कामों में हाथ बटाएं। बाहर की कुछ जिम्मेदारियां हम लें और कुछ जिम्मेदारियां सरकार पूरी करें। तब सिर्फ हमारा मोहल्ला ही नहीं, पूरा इंडिया चमकता रहे। आज हमारे स्कूल में महापौर जी आ रही हैं। हमने उनके लिए एक खास वेलकम की तैयारी की है। पर ठहरिए ठहरिए, हमारी कहानी समझने के लिए जरा फ्लैशबैक की जरूरत है।
कल रात बहुत बारिश हुई। आज मौसम बहुत सुहाना है, इसलिए पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। दूरदर्शन और उसका महत्व, इसका प्रचार और प्रसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ। और सुनी को तो रोज की आदत है, बीच क्लास में उठ के बाथरूम जाएगी। पर आज उसके साथ ये कैसी घटना घट गई? लग गई हो, पत्थर गिर गया। अरे हमारा स्कूल भारत के दूसरे गर्ल्स स्कूल की तरह ही है, जहाँ 700 से ऊपर लड़कियाँ हैं और टीचर्स, दूसरे स्टाफ भी हैं। स्कूल आना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं। बस एक ही चीज़ है जो बहुत ख़राब है, पूरा स्कूल बस बाथरूम से महका हुआ है। इतना अच्छा कि पूछो ही मत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बूंद पानी नहीं है। दिन भर में 700 बच्चे अगर 2 बाथरूम में जाएंगे तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। ऊपर से छत टूटा जिससे गंदा पानी टपकता है। साबुन, मग, बाल्टी आज तक इस बाथरूम में कभी देखे ही नहीं। दरवाजे खिड़की को तो छोड़ो, बाथरूम तो पूरा का पूरा भूत बंगला लगता है। जिस दिन अश्वनी को चोट लगी वो सारा दिन बेकार रहा। सर का क्लास जो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर आज वहाँ भी हमारा मन नहीं लग रहा था। अश्वनी तो उदास थी ही, साथ में ज्योति, दुर्गा और सारे फ्रेंड्स उदास रहे। लंच की छुट्टी में जब सब मिले तो गुपचुप खाए, हमने अपना मन बहलाया। पर ज्योति को तो गुस्सा ही आ रहा था। मुझे तो गुस्सा ही आता है, ये बाथरूम ही ऐसा एकदम खटारा, एकदम अश्विनी आज इसको लग गया है, कल किसी और को लग जाता तो एकदम पूरे यहाँ के दरवाजे ना पानी, कुछ भी अच्छा सा नहीं है। भी सही वो तो होना ही था। ये तो डाली भी है, कुछ तो करना पड़ेगा कि कुछ हो। हम यह सोच रहे थे कि क्या हम बच्चे कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चे तो क्या हुआ, बच्चे भी तो कुछ भी कर सकते हैं ना। फिर सबने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। दुर्गा के घोड़े ने तो रेस जीत ली। क्या झक्कास आइडिया था। सामने वार्षिक उत्सव था और हमारी मेयर आ रही थी। क्यों ना हम उसे बहुत सारा पानी पिला दे ताकि उन्हें टॉयलेट जाना पड़े। और वो इतना सारा पानी कैसे पी सकती है? कोई तो ना इतना सारा पानी पी सकता है। क्यों ना हम शरबत कॉम्पिटिशन रखें जिसमें वहाँ पर आएगी और शरबत को पी के टॉयलेट जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसके लिए हम तड़प रहे थे। हम सब ने उनका दिल से सम्मान किया। उन्होंने हमें ऐसी बातें बताई जो हमारे मन को छू गई। तो इनके स्वागत में ताली बजाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जैसे स्टूडेंट से बातें करना और मिलना। ख़ास तौर पे मैं यहाँ आई ज़रूर हूँ इस चीफ गेस्ट के तौर पे, पर स्पेशली मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे दौर से गुजर चुकी हूँ। कोई हमसे पूछता है कि आप क्या बनना चाहते हो तो आप हमेशा ये बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सबका अपना अपना एक सपना होता है, बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों अच्छा बच्चों, तो अब मैं जा रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से हॉल में मिलती हूँ। बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा के पढ़ना।
यहाँ पर हमारा इंतजार खत्म हुआ जब महापौर जी ने शरबत प्रतियोगिता के लिए प्रस्थान किया। हमने ऐसे मनमोहक शरबत बनाए जिसे देख के महापौर के मुंह में तो पानी आना ही था। महापौर ने भी बड़े चाव से शरबत पिया और फिर बहुत ही टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। और तो पियो, पूरा तो पियो। जाने से पहले महापौर ने हमें एक वादा किया, हमारे स्कूल के बाथरूम की मरम्मत होगी और नए बाथरूम बनाए जाएंगे, और उन्होंने अपना ये वादा पूरा किया। The beauty of the coal lies in Shimla's hills, the clean air and water produced in the divine mills. The children are playing to remove their chill. Soon, their happy play grows into a shrill. While sweepers in the vicinity were in their drill to keep their city clean so that none get unhealthy and ill. As the ball crossed the way to strike the garbage heap, no apologies but abuses, causing pain which was deep. Small was the gesture, but effect went berserk. All sweepers decided to stop their work. Slowly the garbage became an enormous heap. Days changed to nights and none awoke from sleep. Time passed and people found that the impact was deep. Sting, disease and epidemic then made the people weep. Creatures of the dark came into light, squashing and scaring the humans gave them delight. Superflies were all over stinking the air. Giant rats were chewing the buildings with no care. Then came the celebrations of victory. Creepies did what they never did in history. Flies dancing, roaches landing in parachutes, and rats in their tuxedos and suits. Have you ever seen a party so crazy? Humans were slaves and the guests were in frenzy. Walking backwards to please their master,
while roaches and rats die of laughter. Looking at the city, so insane, responsible sweepers decided to remove the shame. Sweepers became Sweeper Man to eliminate the creepies and to save their clan. They cleaned the dirt and removed the vicious. The citizens realized that sweepers were precious. People were shameful of their misdeeds. They apologized for the arrogance of their creed. Finally, all was resolved and people became cheerful. Citizens promised to help make Shimla beautiful. The creepies left the city in a rotten rally. Shimla was shining like a golden valley. With time, sweepers and citizens became equal. And you all out there, clap your hands and wait for the sequel.